اگر دولت رگنی کی جگہ گھر میں موجود ہے تو جمعہ کے دن حسبنا و نعم الوکیل 25 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا. 10 کروڑ بھی مانگوں گی اللہ وہ بھی دے دے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو میرے بھائیو آپ کے گھر میں آپ کی جیب میں دولت رگنی کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا. یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کے آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹنے پھرو گے تو دولت ختم نہ ہو پائے گی. میرے بھائیوں میرے بہنوں، جمعہ کے دن کا آج آپ کو مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں میرے بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگ کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ جمعے والے دن پڑھ لینا. دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا. دولت آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئے گی، آپ کا گھر کا پتہ پوچھے گی یہ بندہ کہاں رہتا ہے. آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا بیکاری بندہ بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ خالی جولیاں بھر جائے گی. لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیے. ان آزمائشوں کو رضا بالقضاء سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھیں. محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہے اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت و برکت بیان کی گئی ہے. اس لیے حدیث میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے. نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان سے یہی کلمات ادا ہوئے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے. 7 بار کہا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے تھے. جو شخص اس تسبیح کا ورد کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے. اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گے. ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر مشکل کا کام آسان ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے. ایمانم وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے ایمان والو کہہ دو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بھی بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا. یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں پوری طور پر پیسے لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا. آپ کے جو بری حالات ہے، بری دن ہے، وہ فوراً بدل جائے گی. میرے بھائیوں میرے بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو آج تک بتایا، انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا. راتوں رات ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا. غریب تھے، راتوں رات امیر ہو گئے. میرے بھائیوں میرے بہنیں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائی ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا. جمعے کے دن کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اپنی زندگی میں جو میرے بھائی بہن چلتے پھرتے کو اگر ایک جمعہ کو پڑھتے ہیں تو اگلے جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں. ناظرین، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک جمعہ کو پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے.
पूरी ज़िंदगी में अगर आप लोग सिर्फ एक मरतबा भी ये वजीफ़ा पढ़ लो, यूँ तो आप लोग मेरे भाइयों मेरे बहनों हर जुमा को ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, लेकिन अगर एक जुमा को भी पढ़ लो तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं वीडियो देख रहे हो, जैसे ही मेरे भाइयों मेरे बहनों जुमा का दिन आए, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, सऊदीया, दुबई, मलेशिया में, पूरी दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही मेरे भाइयों मेरे बहनों आपके सामने ये वीडियो आए, आप लोग अगर जुमा से पहले ये वीडियो देख लें, कहीं लिखकर अपने पास महफूज कर लें और जब जुमा का दिन आए तो ये वजीफ़ा कर लेना। आप लोग ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हो, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। ये वीडियो देखते देखते ही आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए जो दिन है वो जुमा का है, आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। इसके अलावा जुमे वाले दिन आप लोग किसी भी जगह पे ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, चाहे तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो, फजर के बाद, ज़ुहर के बाद, असर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी वक्त पढ़ लो, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जुमे वाले दिन आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। जुमे के दिन ये वजीफ़ा करने के लिए आराम से और सुकून से किसी जगह बैठ जाए। मुहतरम नाज़रीन, आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरे बहनों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इतना आसान है कि कोई छोटा सा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। दुरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलत है। दुरूद पाक अजीज़ साथियों बहनों पढ़ लो तो उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक मरतबा, सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ ले, कोई सा भी दुरूद इब्राहिम में पढ़ लिया, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लिया। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के पूरा ये अमल 1 मिनट का है, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगता। इसलिए आप लोगों से ख़ास गुजारिश है, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। थोड़ी सी भी वीडियो छोड़ के चले जाओगे, काट काट के देखोगे, बहुत से अहम बातें आपको समझानी है। अगर आपने थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप किया तो आपको वजीफे की समझ नहीं आएगी। एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा आप लोग जब दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें, एक मरतबा सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, फिर तीसरी मरतबा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। 3 मरतबा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो आपको 2-3 वज़ाइफ पढ़ने हैं एक के साथ, मतलब पहले एक वजीफ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आसान वज़ाइफ है, बहुत कम तादाद में समझ लें। एक आधा मिनट के अंदर अंदर पूरा अमल कर लेंगे। दुरूद शरीफ से लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लेंगे और ये तमाम वज़ाइफ आप लोग एक आधा मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से, सुकून से पढ़ लेंगे। और आसान भी इतने हैं कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। एक मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ ले, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, उसके बाद फ़ौरन आपको जो पहला वजीफ़ा पढ़ना है, बहुत आसान सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा मेरे अजीज़ साथियों, मेरे बहनों, बुज़ुर्गों, आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा है या अल्लाहु या बासितो। एक मरतबा पढ़े, बहुत आसान वजीफ़ा है। फिर दूसरी बार पढ़े या अल्लाहु या बासितो, दोबारा पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़ ले या अल्लाहु या बासितो। ये वजीफ़ा सिर्फ 7 मरतबा आपको पढ़ना है। 7 मरतबा जब ये वजीफ़ा पढ़ ले,
उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, वजीफे को, इस दुआ को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आज के अमल में आपको सेकंड नंबर पर, जब आप लोग पहले नंबर पर या अल्लाह या बासितों का वजीफ़ा पढ़ लें 7 मरतबा, तो उसके बाद आप लोगों को फ़ौरन तस्बीह अपने हाथों में हो तो भी ठीक, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे पढ़ना शुरू कर दें। एक बार पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उसी वक्त दूसरी बार पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उसी वक्त तीसरी मरतबा भी पढ़ लें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा है जो अमल आपको सेकंड नंबर पर ये वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को आपको 11 मरतबा यानी पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा इस वजीफ़े को भी मेरे अजीज़ साथियों, मेरे बहनों, मेरे बुज़ुर्गों पढ़ लें तो आखिर में आपको ये एक वजीफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी वजीफ़ा जो आप लोगों को पढ़ना है ये बड़ा ही मुजर्रब और दौलत को केंच कर लाने वाला वजीफ़ा है। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। आज के अमल में सबसे आखिर में आपको यही वजीफ़ा पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा या रज़ाक़ो या गनियो पढ़े, एक बार पढ़ लिया फिर दूसरी बार पढ़ ले या रज़ाक़ो या गनियो। इस वजीफ़े को आज के अमल में आप लोग सबसे आखिर में पढ़ लेंगे। ये वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पे पढ़ ले या तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। जितनी तादाद में बताया जाएगा उतनी ही तादाद में बराए करम पड़ेगा। अपनी तरफ से बिल्कुल कमी बेशी हरगिज़ मत कीजिएगा। इस वजीफ़े को आप लोग 7 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपको करेगी क्या कि अच्छी तरह समझ ले। उसके बाद आप लोगों ने फ़ौरन एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने वजीफ़े शुरू करते वक्त पढ़ा था। नाज़रीन, एक बार फिर से वजीफ़े की तरतीब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आपने या अल्लाह या बासितो 7 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाह या बासितो पढ़ने के बाद आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने या रज़ाक़ो या गनियो 7 मरतबा पढ़ के दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसी तरह आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने दुख तकलीफ बीमारियों के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस अमल को जुमे के दिन लाजमी कर लीजिएगा। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, चाहे वो आपके रिस्क हो, बीमारी हो, आपको तंगदस्ती हो, पैसों की कमी हो, कोई भी मसला हो तो आपका वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें कुशादा और वसी रिज़्क़ अता कर। ए अल्लाह पाक हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता कर। हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। ये औलादों को औलाद अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता कर। तंगदस्तों की तंगी दूर कर और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली अता कर। ए अल्लाह पाक कर्ज़ से मरज़ से निजात अता कर। ए अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना और दीन इस्लाम के अहकामात के अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना और आपका सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। और अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।